بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سلام. عزیزان محترم، انتہائی مختصر گفتگو کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں ایک انتہائی طویل آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سبحان اللہ. سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ ہے اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ اس 7ویں سورہ کی 157ویں آیت ہے. اس آیت کی مرکزی فکر یہ ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں میرے رسول کے، میرے نبی کے پیچھے، میرے امی کے پیچھے. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ رسول وہ ہے، یہ نبی امی وہ ہے کہ جس کا تذکرہ پانے والے قیامت تک توریت و انجیل میں پاتے رہیں گے. سبحان اللہ. یامرہم بالمعروف، ہم نے اسے اس لیے بھیجا کہ اچھائیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے، طیبات کو حلال کرے، خبائث کو حرام کرے. تم نے جو قانون بنائے ہیں ان قانونوں کو توڑے، اللہ کے قانون کو دنیا میں رائج کرے. دیکھو یہ ہے اتباع رسول کی منزل. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اتباع کرو میرے رسول کا، اتباع کرو میرے نبی کا، اتباع کرو میرے امی کا. بھائی توجہ رکھنا. فالذین آمنوا بہ، سنو اب جنت کیسے دوں گا؟ میرے نبی پہ ایمان لاؤ جنت دوں گا. میرے نبی پہ ایمان لاؤ جنت دوں گا. مالک ایمان لے آئے، یہ اتنا بڑا مجمع، لاکھوں پہ مشتمل مجمع، کیا نبی پہ ایمان نہیں ہے نا ایمان؟ تو مالک ایمان لے آئے، جنت دے دے. کہا نہیں، اب دوسری شرط پوری کرو، وعزروہ، میرے نبی کی عزت بھی کرو. تنہا ایمان کافی نہیں ہے، تنہا ایمان کافی نہیں ہے.
میرے نبی کی عزت بھی کرو. تو اب میں پوچھوں اس محترم مجمع سے کہ بھائی ایمان ہے نبی پر؟ سب کہیں گے کہ ہے. تو میں پھر سوال کر رہا ہوں, کیا دل میں عزت نہیں ہے؟ سب کہیں گے کہ ہے. تو جب ایمان ہے تو عزت تو خود ہے نا. تو یہ الگ سے کیوں کہا کہ ایمان بھی لاؤ, عزت بھی کرو؟ بتلانا یہ تھا کہ کچھ ایسے کلمہ پڑھنے والے بھی ہوں گے جن کا کلمہ زبان پہ ہوگا, دل میں میرے محمد کی عزت نہیں ہوگی. عجیب مرحلہ. فالذین آمنوا بھائی دیکھو, جنت دوں گا, جنت دوں گا, وعدہ ہے میرا کہ جنت دوں گا, لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ میرے محمد پر ایمان لاؤ. ٹھیک, مالک لے آئے ایمان, دے دے, کہا نہیں. اب دوسری شرط سنو, اور ضرور ہو میرے محمد کی عزت بھی کرو. مالک یہ بھی کر لیا, ایمان بھی لے آئے, عزت بھی کر لی, اب تو جنت دے دے, اب دے دے. کہا نہیں, اب تیسری شرط سنو, وَنَّصَرُوهُ ہو, اس کی مدد بھی کرنا, جب پکارے تو آ جانا, بھاگ نہ جانا. ہے نا؟ بھائی عجیب عجیب مراحل ہیں, عجیب مراحل ہیں اور عجیب مسائل ہیں. جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آتا, بھائی ایمان لاؤ, ایمان لاؤ, پہلی شرط پوری کر دی. عزت کرو, دوسری شرط مالک پوری کر دی. دونوں شرطیں پوری کر دی نا. مدد کرو میرے محمد کی, پروردگار یہ بھی شرط پوری کر دی. جب بھی تیرا نبی بلائے گا آ جائیں گے. تو اب تو جنت دے دے, ایمان لے آئے, عزت کر لی, مدد کر دی, ٹھیک ہے نا. اب تو جنت دے دے. کہا نہیں, اب آخری شرط سنو, اس کے بغیر جنت نہیں دوں گا. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, محمد کی پیروی کے ساتھ اس نور کی بھی پیروی کرو جو محمد کے ساتھ ساتھ دنیا میں آیا ہے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو کہ اسلام اتباع محمد کے علاوہ کسی اور چیز کا نام نہیں ہے. اسلام بہت سنا ہے نا, اسلام شناختی کارڈ میں بھی ہے دین اسلام. ہر ایک کہتا ہے مسلمان, ہم مسلمان. تو اسلام اتباع محمد کے علاوہ کسی دوسری چیز کا نام نہیں ہے. اب چاہے اسے محمد کی پیروی کہہ لو, چاہے اسے اسلام کہو. اب میرے سامنے اتنے محترم علماء تشریف فرما ہے, میرے دوست حجت اسلام مولانا غلام علی وزیری, مولانا فیروز الدین رحمانی, اور حجرہ شاہ مقیم کے سجادہ نشین میرے عزیز دوست پیر طریقت سید آصف گیلانی, یہ حضرات تشریف فرمائے. اور اب انہیں گواہ بنا کے جملے عرض کر رہا ہوں, اور دوسرے قابلین تشریف فرمائے. اب گواہ بنا کے انہیں اسلام کے سلسلے میں کچھ جملے عرض کروں گا, اتباع محمد کے سلسلے میں کچھ جملے عرض کروں گا. بھائی غیبت کرنا اتباع محمد نہیں ہے, افواہ پھیلانا اتباع محمد نہیں ہے, بینک بیلنس بنا لینا اتباع محمد نہیں ہے, ووٹوں کو توڑ لینا اتباع محمد نہیں ہے, سڑکوں پہ خون بہا لینا اتباع محمد نہیں ہے, غیر ملکی دورے اتباع محمد نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ, ٹھیک ہے نا. دیکھو دیکھو میرے جملوں کو یاد رکھنا. عالی شان مکان بنانا اسلام نہیں ہے. اسمبلیوں سے ووٹر خرید لینے, ممبر خرید لینے اسلام نہیں ہے. غیر ملکی دورے اسلام نہیں ہے. گھوڑے دوڑانا اسلام نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا, رشوتیں لینا اسلام نہیں ہے. ملک کو بدنام کروا دینا اسلام نہیں ہے. بھائی توجہ رکھو, اسلام کی حفاظت کرو,
اسلام کی عبادت کرو. اگر اسلام ختم ہو گیا تو اسلام آباد بھی نہیں بچے گا. سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو بات؟ بات پہنچ رہی ہے نا میرے محترم سننے والوں تک. اب اتباع محمد سمجھ میں آیا؟ بھائی عجیب بات ہے کہ تم غلامی سے آئے ہو آزادی تک اور پھر تمہیں دنیا آزادی سے غلامی کی طرف لے جا رہی ہے. پہچانو غلام ہو یا نہیں. دیکھو بڑی نازک بات کہہ رہا ہوں. تاریخ انسانیت کا سفر غلامی سے شروع ہوا, آزادی تک آ گیا. ٹھیک ہے نا؟ اب ہم آزاد ہیں لیکن کہنے کو آزاد ہیں. ایک ایک انسان غلام ہے. بھائی سننا, مجھے معاف کر دینا, اگر محمد کی غلامی میں آ جاؤ تو ساری غلامیوں سے نجات مل جائے گی. اگر محمد کی غلامی میں آ جاؤ تو ساری غلامیوں سے نجات مل جائے گی. کل کا انسان بھی غلام بناتا تھا. یہ نئے عالمی نظام کو تو سمجھتے ہو نا؟ میں نے انگریزی کا اردو ترجمہ کیا ہے. نئے عالمی نظام کو سمجھتے ہو نا؟ تو کل کا انسان شخصیتوں کو غلام بناتا تھا, آج کا انسان قوموں کو غلام بناتا ہے. کل کا انسان ایک کو غلام بناتا تھا, آج کی بڑی طاقت ملکوں کو غلام بناتی ہے. کل کا انسان جسم کو غلام بناتا تھا, آج کی بڑی طاقت ذہن کو غلام بناتی ہے. کل کا انسان جب غلام بناتا تھا تو کھلاتا بھی تھا, اور آج کی بڑی طاقت جب غلام بناتی ہے تو غلام بنائے جانے والوں کی کھجور استعمال کرتی ہے, تیل استعمال کرتی ہے, بندرگاہ استعمال کرتی ہے, اور پھر غلام بنا کے رکھتی ہے. عجیب بات ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ہم غلاموں کے معاشرے میں سانس لے رہے ہیں. بھائی تاریخ کے وہ دور یاد ہے نا جب غلاموں کو کچھ دنوں کے لیے حکومت مل گئی تھی؟ مجھے نہیں معلوم میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی. بھائی عجیب دھاندلی ہے. یہ ویٹو پاور کیا ہے؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, طاقت کی حکومت. 150 عقل مند نمائندے معطل ہیں. اگر ایک احمق ویٹو کر دے سمجھ رہے ہو؟ آج بہت دنوں کے بعد بول رہا ہوں. آج بہت دنوں کے بعد بول رہا ہوں. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. ٹھیک ہے نا؟ اچھا, یہ عالمی عدالت کیا ہے؟ یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے کہ جس کے پاس طاقت ہو وہ اپنے حق میں فیصلہ کروا لے. بھائی یہی سبب ہے کہ 1500 سال پہلے میرے رسول نے آواز دی تھی, لا الہ الا اللہ. اگر اللہ کی غلامی میں آ گئے تو ساری غلامیوں سے آزاد ہو جاؤ گے. بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں. میرے رسول نے نعرہ دیا, لا الہ الا اللہ. اگر تم اللہ کی غلامی میں چلے گئے تو بندوں کی غلامی سے بچ جاؤ گے. اور میرے علی نے آواز دی, لا تکن عبدا لغیرک فقط خلقک اللہ حرا. دیکھو کسی غیر کے بندے بن کے نہ رہنا, اس لیے کہ اللہ نے تو تمہیں آزاد پیدا کیا ہے. سن رہے ہو نا؟ پوری دنیا غلام بنا رہی ہے, پوری دنیا غلام بن رہی ہے. کس بنیاد پہ غلام بنائے جاتے ہیں؟ 2 ہی بنیادیں ہیں, یا ڈر یا لالچ. تیسری کوئی بنیاد ہو تم بتا دو. بھائی غلام بن جاؤ ورنہ ہم تمہاری امداد روک دیں گے. غلام بن جاؤ, یا ڈر یا لالچ. بھائی سننا, غلام بن جاؤ ورنہ ہم تمہاری امداد روک دیں گے. اب انسان غلام تو بنے گا چونکہ امداد چاہیے. یہ ہے ڈر اور لالچ. غلام بن جاؤ اتنا قرضہ دیں گے. پہنچ رہی ہیں باتیں؟
بھائی بہت بہت توجہ رکھنا. تو غلام بنائے جاتے ہیں یا ڈر کی بنیاد پر یا لالچ کی بنیاد پر. بھائی توجہ رکھنا, اس لیے کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. غلامی کی بنیاد دو چیزیں, یا لالچ ہے یا خوف ہے. لالچ کی سب سے بڑی چیز کا نام ہے جنت, اور خوف کی سب سے بڑی چیز کا نام ہے جہنم. بھائی کسی کو انکار ہے؟ کسی کو انکار ہے؟ لالچ کی سب سے بڑی چیز کا نام ہے جنت, اور خوف کی سب سے بڑی چیز کا نام ہے جہنم. اور میرے علی نے آواز دی, الہی ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک. پروردگار تجھے جو سجدے کر رہا ہوں وہ تیری جنت کے لالچ میں نہیں کر رہا ہوں, تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کر رہا ہوں. عجیب مرحلہ ہے. ما عبدتک طمعا لجنتک, پروردگار میں نے جو تیری عبادت کی ہے, تیرے لیے جو سجدے کیے ہیں وہ تیری جنت کے لالچ میں نہیں کیے, ولا خوفا من نارک, تیرے جہنم کے خوف سے میں نے سجدے نہیں کیے, بل وجدتک اہلا للعبادہ. پروردگار میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا تو میں نے تیری عبادت کی. جو خدا کی اہلیت پہ بات کرے بندے اس کی اہلیت پہ بات کریں گے. کیا عجیب مرحلہ ہے, کیا عجیب مرحلہ. اب ایک طرف محمد والے چلے اور دوسری طرف دنیا والے چلے. اب تاریخ تو چلے گی نا آگے, تاریخ کو تو آگے جانا ہے. تو اب دنیا والوں نے کہا بھائی سننا, اور یہ جملے رائے گا نہ جانے پائیں. میں ابھی عرض کر کے گزرا ہوں نا کہ بہت دنوں کے بعد بول رہا ہوں, بہت دنوں کے بعد بول رہا ہوں. اب دنیا والے چلے, دوسری طرف اللہ والے محمد والے چلے. تو دنیا والوں نے کہا کہ عوام ہمارے, عوامی طاقت ہے ہمارے پاس, ٹھیک. دنیا والوں نے کہا عوام ہمارے, فوج ہماری, ٹھیک, لشکر ہمارا, عسکر ہمارا, سکہ ہمارے نام کا, 25,000 روپے کے باؤنڈ ہمارے. بھائی پہنچ رہی ہے بات یا نہیں؟ تو اب دنیا والوں نے کہا لشکر ہمارا, عسکر ہمارا, ISI ہماری, رینجر ہمارے, پولیس ہماری, خزانہ ہمارا, دولت ہماری, سڑکیں ہماری. بھائی توجہ رہے, اگر ایک اللہ ہمارا نہیں ہے تو کیا فرق پڑے گا؟ ایک اللہ. بھائی دولت ہماری ہے, طاقت ہماری ہے, عسکر ہمارا ہے, لشکر ہمارا ہے, خزانے ہمارے ہیں, سکے ہمارے ہیں, تخت ہمارا ہے, تاج ہمارا ہے, تاج پہ جگمگانے والا ہیرا ہمارا ہے. اگر ایک اللہ ہمارا نہیں ہے تو کیا فرق پڑا؟ اور ادھر اللہ والوں نے کہا کہ تخت ہمارا نہیں, تاج ہمارا نہیں, دولت ہماری نہیں, فوج ہماری نہیں, لشکر ہمارا نہیں, عسکر ہمارا نہیں, رینجر ہمارے نہیں, پولیس ہماری نہیں, اللہ ہمارا ہے. اللہ ہمارا ہے. تو اب دونوں کا فرق بتلاؤ. وہ جو بڑے تاج والے تھے جب اپنی زمین میں مرے تو آج زمین نے نشان قبر بھی باقی نہیں رکھا. پہنچ رہی ہے نا, پہنچ رہی ہے باتیں, پہنچ رہی ہے, بالکل پہنچ رہی ہے. میں بہت سیدھی بات عرض کر رہا ہوں نا. وہ جو بڑے تاج والے تھے, وہ جو بڑے تخت والے تھے, اگر حکومت کی ایڈ نہ ہوتی تو مقبرہ بھی نہ بن پاتا. سن رہے ہو؟ تو کہیں کہیں مقبرے نظر آ جائیں گے, لیکن جملہ سنو. جو حکومت والے تھے, دنیا والے تھے, ان کی قبروں کے نشانات نہیں ملتے. اور وہ جو اللہ والے تھے اگر ریگستان میں دفن ہو گئے, ریگستان نجف بن گیا. سمجھ رہے ہو نا؟ وہ جو اللہ والے تھے اگر ریگستان میں دفن ہو گئے, ریگستان
नजफ बन गया, और अगर जंगल में दफन हो गए जंगल करबला बन गया। समझ रहे हो? जाओ जाओ, मिंबर से चैलेंज कर रहा हूँ, शाहाने बनी उमैया में से किसी बादशाह की कब्र का पता ले आओ। जाओ, इल्म की दुनिया है, दानिश की दुनिया है, मीडिया की दुनिया है, कम्युनिकेशन की दुनिया है। सबको चैलेंज कर रहा हूं कि बनी उमैया के बादशाहों में से किसी एक बादशाह की कब्र का सुराग लेके आ जाओ कि ये फला बादशाह की कब्र है। सुनते हैं कि फला जी है, नहीं, ये फला बादशाह की कब्र है, नहीं मिलेगा। अच्छा जाओ, दूसरा चैलेंज में सुनते जाओ, बनी अब्बास में से किसी बादशाह की कब्र का निशान ले आओ। है ना, जमाने का अमल किसी को नहीं बख्शता। बाबिल के खंडरात देखो, नैनवा के खंडरात देखो, है ना भाई। एक तरफ से आवाज आई कि दूर क्यों जाओ, मोहनजोदारो के खंडरात देखो जो लाड़काने के करीब है। ठीक है ना, टैक्सिला के खंडरात देखो, हड़प्पा के खंडरात देखो। क्या इन खंडरों में बादशाहते नहीं थी? बादशाह थे, लेकिन किसी का निशान कब्र नहीं मिलता। अच्छा, वो तो बड़े पुराने लोग थे। चलो, सलातीन बनी अब्बास में से, ये तो अभी गुजरे हैं ना, 1000 साल पहले, तो सलातीन बनी अब्बास में से किसी बादशाह की कब्र का निशान नहीं मिलता। और अगर मिलता है तो एक, सुनना, चैलेंज के साथ कर रहा हूं, कुल एक बादशाह बनी अब्बास का ऐसा है जिसकी कब्र का निशान मालूम है, और उस बादशाह का नाम है हारून रशीद। हारून रशीद जानते हो कि कैसे निशान कब्र का पता है? तारीखों में लिखा है कि इमाम रजा से इतने गज के फासले पे दफन है। अगर बादशाहत का पता मिला भी तो इमामत की जूतियों की भी। अगर भाई सुनना, अगर बादशाहत का पता चला भी तो इमामत की जूतियों के जरिए पता चला कि भाई बहुत तवज्जो रखना कि हारून रशीद इमाम रजा के पहलू में दफन है। भाई ये भी कुदरत का एक मंसूबा था कि एक बादशाह एक मासूम के पहलू में दफन हो जाए, ताकि क़यामत तक के लिए सनद बन जाए कि पहलू में दफन होना फजीलत नहीं है। पहलू में दफन हो जाना सनद नहीं है, सनद है इत्तिबाए मोहम्मद। पहलू में बैठ जाना फजीलत नहीं है, फजीलत है इत्तिबाए मोहम्मद। आ गई ना बात मेरे मोहम्मद तक, तो अब सिलसिले फिक्र को इसी मकाम से आगे बढ़ जाना है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, अगर रुक कर सुन सकते हो तो इन जुमलों को सुनते जाओ। भाई इत्तिबा करो मेरे मोहम्मद का, इत्तिबा करो मेरे मोहम्मद का। ये मोहम्मद वो है जो रसूल है, नबी है, उम्मी है। मौलाना आसिफ गिलानी साहब से खुसूसियत के साथ आपको मुतवज्जह कर रहा हूं। ये कौन है? अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूल नबी उम्मी। रसूल है, नबी है, उम्मी है। रसूल के मानी जो अल्लाह से पैगाम देके तुम्हें बताए, ठीक। उम्मी के नबी के मानी जो अल्लाह से पैगाम ले। रसूल जो पहुंचाए, नबी जो ले। उम्मी के मानी जिसे न लिखना है न पढ़ना है। तो चूंकि तर्जुमों में यही लिखा है इसलिए मैंने भी तर्जुमा कर दिया। चूंकि तर्जुमों में यही लिखा है इसलिए मैंने भी ये तर्जुमा कर दिया। और मैंने मान भी लिया कि मोहम्मद को लिखना भी नहीं आता था, पढ़ना भी नहीं आता था। तो तुम कह रहे हो ना कि लिखना नहीं आता, तो जब कलम मांग रहा था तो दे देते।
भैया जुमला खड़े होके कह दे, ये जुमला खड़े होके। ये हमारी खुश नसीबी है कि अल्लामा तालिब जौहरी जैसे अजीम आलम दीन आपके पास हैं। इसी वजह से तो पंजाब के करिया करिया में हर अहले सुन्नत इनकी हक गोई पर इनसे मोहब्बत करता है। और मैं कायदे अहले सुन्नत पीर आसफ अली गिलानी तहरीक वहदत इस्लामी का कायद होने के नाते हमेशा यही अवाम को और लोगों को, चाहने वालों को यही पैगाम देता हूं कि देखो इत्तेहाद इसी में होगा और इत्तेहाद इसी पर है कि उनसे इश्क किया जाए कि जिनका किरदार बेमिसाल है। और ये बेमिसाल किरदार ऐसे किरदार हैं कि दुनिया को अगर हम दिखा सकते हैं तो यही किरदार हैं। वो कौन से किरदार जो शियाने हैदर कर्रार के पास हैं। मैं सलाम पेश करता हूं उन अहले सुन्नत को जिनको मारफत मौला अली है, मारफत इमाम हसन है। और ये मारफत कराने के लिए मौलाना तालिब जौहरी का किरदार अपनी जगह पे है। हम इनको सलाम पेश करते हैं। बस मेरे दोस्तों, मेरे हजारों दोस्त धूप में खड़े हुए सुन रहे हैं। रमजान का महीना है, गुफ्तगू को तूल नहीं दूंगा, लेकिन बात तो मुकम्मल हो जाए ना। तो अब मौलाना की सनद तस्दीक सख्त है, सनद लगी हुई है। भाई सुनना, उम्मी के मानी जो लिखना न जाने, उम्मी के मानी जो लिखना न जाने, तो जब लिखना जानता नहीं तो कलम दे दो। तो दिल में खतरा है कि अगर देंगे तो लिख देगा। दिल में खतरा है कि अगर कलम देंगे तो लिख देगा। तो जबान से कहा लिखना नहीं जानता, जबान से कहा लिखना नहीं जानता, दिल में खतरा है कि लिख देगा। जहां जबान और दिल में इख्तिलाफ हो जाए उसका नाम इस्लाम नहीं, मुनाफिकत है। बस मैंने रहमत दी। मेरे मोहम्मद को पहचानो, मेरे मोहम्मद को पहचानो। अगर मेरा मोहम्मद समझ में आ गया तो मेरा अली खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इसलिए कि मोहम्मद और अली में फर्क नहीं है। मेरे मोहम्मद को पहचानो। भाई अजीब मरहला फिक्र है। अब मैं अपनी जबान से कुछ नहीं कहूंगा। इमाम सालबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में लिखा, इमाम सालबी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक मेरे मकसद से नहीं है, मेरे मकसद से नहीं है, ठीक है ना। आलम इस्लाम के बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी बड़ी किताबें, एक मशहूर किताब तफसीर सालबी, और उस हवाले से दो जुमले सुनो। मुझे इजाजत दे दो। अगर मोहम्मद समझ में आ गया तो अली खुद समझ में आएगा। मोहम्मद वो कि जिसकी नबूवत का इकरार नबियों से लिया गया। कुछ समझ में आया? मोहम्मद वो जिसकी नबूवत का इकरार नबियों से लिया गया। मेराज की शब में, अब तफसीर सालबी के हवाले से ये जुमले अर्ज कर रहा हूँ, मेराज की शब में जब मेरा नबी चला है जिब्रील के साथ, तो चौथे आसमान पर सारे अंबिया को अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरे मोहम्मद की सवारी आ रही है, दो रोया कतार लगा के खड़े हो जाओ, सलाम करते जाओ, मेरा मोहम्मद जवाब देता जाए। देख रहे हो शान, मेरे मोहम्मद की शान देख रहे हो? जब चौथे आसमान पर सवारी पहुंची, अंबिया ने कतारें लगाई। इमाम सालबी रहमतुल्लाह अलैह, ये जुमला रखना ध्यान में। और मैं सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन देने का आदी नहीं हूं कि सुन के तुम्हें सुना दूं, नहीं, किताब से देख के बोल रहा हूं, किताब देख के बोल रहा हूं। चौथे आसमान पर रसूल की सवारी पहुंची,
पैगंबरों ने दुरोया कतारें लगाई, ठीक। पैगंबर नूर के नाके पे सवार हैं, नकाबे नूर चेहरे पे है, जिब्रील के हाथ में महारे नाका है, दरमियान से नबियों के निकलते जा रहे हैं, और हर नबी जब सलाम कर रहा है अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। पैगंबर नाम लेने के जवाब दे रहे हैं, वालेकुम सलाम या आदम, वालेकुम सलाम या नूह, वालेकुम सलाम या इब्राहिम, वालेकुम सलाम या मूसा, यानी सब कहे रसूलुल्लाह। रसूल कहे आदम, नूह, इब्राहिम। समझ रहे हो ना? जब सारे नबियों ने सलाम कर लिया, मैं बहुत तेजी के साथ गुजर रहा हूं, इसलिए बहरहाल अजान से पहले चाहता हूं तकरीर तमाम हो जाए, ठीक है ना? आजान ज़ोहर से पहले मैं ये चाह रहा हूं कि तकरीर तमाम हो, तो ये जुमले मुकम्मल हो जाए और ये जुमले ज़हन नशीन हो जाए। सबने सलाम किया। एक मर्तबा जब सबको सलाम का जवाब दे चुके पैगंबर, तो नबियों ने अपने अल्लाह से दरखास्त की कि परवरदिगार, हमारी ख्वाहिश है कि आज हम जमाले रूए मोहम्मद का नजारा करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमाले रूए मोहम्मद का नजारा करें। हुक्म हुआ नकाबे नूर को उलट दो। पैगंबर ने नकाबे नूर उल्टी, नकाबे नूर उल्टी। सारे नबियों ने पैगंबर के चेहरे की जियारत की, और अब हुक्म आया, वसअल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना अजअलना मिन दूनिर रहमानि आलिहतन युअबदून। हबीब पूछो, हमने किन शर्तों पे इन्हें नबूवत दी? हबीब पूछो इन नबियों को, ये नबी सारे खड़े हैं ना, ये सारे नबी खड़े हैं, हबीब इनसे पूछो कि हमने किन शर्तों पर इन्हें नबूवत दी है। रसूल ने कहा, नबियों बताओ कि तुम्हें अल्लाह ने किन शर्तों पे नबूवत दी? कहा, या रसूल अल्लाह 3 शर्तें। कहा, वो तीनों शर्तें बता दो। कहा, या रसूल अल्लाह, पहली शर्त अल्लाह की तौहीद का इकरार, ईमान नहीं, इकरार। ईमान होता है दिल से, इकरार होता है जबान से, ठीक है ना? या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, पहली शर्त अल्लाह की तौहीद का इकरार। कहा, दूसरी शर्त। कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी नबूवत का, रिसालत का इकरार। सुभान अल्लाह, सुभान इकरार जबान से। कहा, तीसरी शर्त। कहा, या रसूल अल्लाह, आपके भाई अली की विलायत का इकरार। भाई सुनना, इसलिए के बहुत तवील गुफ्तगू नहीं है, ईमान नहीं, इकरार। तो जब अल्लाह ने कहा होगा मेरी तौहीद का इकरार करो, तो ज़बान से कहा होगा ना ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब अल्लाह ने कहा होगा मेरे मोहम्मद की नबूवत का इकरार करो, तो नबियों ने ज़बान से कहा होगा ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब कहा होगा अली की विलायत का इकरार करो, तो ज़बान से कहा होगा ना अलीयुल वलीयुल्लाह। ठीक है, बात पहुंच रही है ना भाई? जबान से इकरार, जबान से कहा होगा ना अलीयुल वलीयुल्लाह, तो अब समझ में आया ये कलेमा कितना पुराना है। नहीं, अब मैं जुमला कहने वाला हूँ। ये जुमला कितना पुराना है? नबियों को नबूवत मिली है अलीयुल वलीयुल्लाह पर, तो लोग पूछते हैं कि इस जुमले को बढ़ाया कब से? पूछते हैं या नहीं? बहुत पूछते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जैसे ही हमने कहा अलीयुल वलीयुल्लाह, कहने के भाई ये जुमला कब से बढ़ा लिया, ये जुमला कब से बढ़ा लिया? तो आज मैं सवाल बदल रहा हूँ। तुम पूछते हो कि बढ़ाया कब से? अरे ये जुमला तो नबियों के दौर से आ रहा था, तुमने घटाया कब से? सुभान अल्लाह। बस ज्यादा जहमत समात नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरी ख्वाहिश यही है कि अज़ान ज़ोहर से कब्ल ये मजलिस इख्तिताम पजीर हो जाए, लेकिन मैं इन जज्बात परवर नारों से रोक भी नहीं सकता, इसलिए कि बैठने वाले पत्थर नहीं हैं।
ठीक है ना बात? मैं रोक भी नहीं सकता, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सुन लो। जाहिर है मेराज बयान नहीं कर रहा हूँ, बात अली तक आ गई। ये वलीउल्लाह घटाया कब से? ठीक है ना, चौथे आसमान से सवारी चली और अब सवारी भी छूट गई। अब पैदल जा रहे हैं मोहम्मद और पहलू में जा रहे हैं जिब्रील, और एक मंजिल आई, मोहम्मद आगे बढ़ गए, जिब्रील रुक गया। रसूल ने कहा जिब्रील ये रुक क्यों गए? कहने लगे या रसूल अल्लाह लौ दनौ तो अनमुलतन ला एहतरक तो। अल्लाह के रसूल अगर जरा सा भी आगे बढ़ जाऊं, मेरी अल्लाह के रसूल मेरी हद खत्म हो गई, मेरी हद खत्म हो गई। अगर जरा सा भी आगे बढ़ जाऊं जल जाऊं, तो मेरी हद खत्म हो गई, इसलिए मैं खड़ा हो गया। तो शराफत यही है कि हर इंसान अपनी हद में रहे तो जलने से बच रहा है। या रसूल अल्लाह लौ दनौ तो अनमुलत अल्लाह तरक तो। बस तकरीर को मैं तमाम करने वाला हूँ, अल्लाह के रसूल मेरी हद खत्म हो गई और अब अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं जल जाऊंगा। कौन कह रहा है? जिब्रील। और कहां से कह रहा है? रसूल के पहलू से, रसूल के पहलू में, रसूल के पहलू में, और कह रहा है मैं जल जाऊंगा। यानी पहलू में होना जलने से नहीं बचाया करता। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, तकरीर तमाम हुई, तकरीर तमाम हुई। मोहम्मद आगे बढ़े, जिब्रील रुक गए, मोहम्मद बढ़ते गए। अब तफसीलात पे जाने का वक्त नहीं है, यहां तक कि अर्श इलाही के करीब पहुंचे। और अर्श इलाही के करीब जब पहुंचे तो एक मरतबा आवाज आई। देखो कहां मैं अब अली के फलाइल को बयान करके बात को मुकम्मल करूंगा। अर्श के करीब पहुंच गए, एक मरतबा आवाज आई, हबीब हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे वजूद से अपने अर्श को जीनत बख्शें। ठीक, हबीब अर्श के ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। रसूल के पैरों में जूतियां हैं, रसूल सोच रहे हैं कि उतारूं या ना उतारूं। ठीक है ना, कल शब में बयान कर रहा था कि मूसा जूतियों समेत वादिय तुवा में चले गए तो मूसा को डांट पड़ गई, और आज तक कुरान में रिकॉर्ड पे है। तो अब मेरा नबी सोच रहा है जूतियां उतारूं या ना उतारूं। एक मरतबा अर्श से आवाज आई कि हबीब आज हम ये चाहते हैं कि अपने अर्श को तुम्हारी जूतियों से जीनत बख्शे। बस मेरी तकरीर तमाम हो गई, मेरी तकरीर तमाम हो गई। अपनी आज हमारी ख्वाहिश है कि अपने अर्श को तेरी जूतियों से जीनत बख्शे। मेरा मोहम्मद जूतियों समेत अर्श पे बुलंद हुआ। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? मोहम्मद जूतियों समेत अर्श के ऊपर आए। अर्श को समझते हो? बस अगर अर्श को समझते हो तो दो जुमले मसाइब पे कहूंगा, बात मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन अभी मैं मसाइब तक नहीं गया, ये जुमला सुन लो। जानते हो अर्श क्या है? अर्श कायनात की बुलंद तरीन शय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी बुलंद, उसके ऊपर कुछ नहीं है, अर्श के ऊपर कुछ नहीं है भाई। आसमान अर्श के नीचे, तूबा अर्श के नीचे, सिदरतुल मुंतहा अर्श के नीचे, जन्नत अर्श के नीचे, जहन्नम अर्श के नीचे, कौसर अर्श के नीचे, तस्नीम अर्श के नीचे, सलसबील अर्श के नीचे, सारे अंबिया अर्श के नीचे, सारी किताबें अर्श के नीचे, सारे खुलफा अर्श के नीचे, सारे सूफिया अर्श के नीचे, और अर्श इन सब के ऊपर, और उस पर मोहम्मद की जूतियां। तो जब सारी दुनिया मिलकर मोहम्मद की जूतियों का जवाब न ला सके तो मोहम्मद की औलाद का क्या खाक जवाब लाएगी? जब सारी दुनिया मिलकर मोहम्मद की जूतियों का जवाब न ला सके तो मोहम्मद की औलाद का जवाब लाएगी। तो बस सुनना, बस अब मेरी तकरीर तमाम हो गई। सारी दुनिया, सारी कायनात अर्श के नीचे, और अर्श उन सब के ऊपर, और अर्श के ऊपर मोहम्मद की जूतियां। ठीक, और मोहम्मद की जूतियों के ऊपर
मोहम्मद के पांव, और मोहम्मद के पांव के ऊपर मोहम्मद के घुटने, और मोहम्मद के घुटने के ऊपर मोहम्मद के जानू, और मोहम्मद के जानू के ऊपर मोहम्मद का शिकम मुबारक, और मोहम्मद के शिकम मुबारक के ऊपर मोहम्मद का सीना, और मोहम्मद के सीने के ऊपर मोहम्मद का कंधा, और उस कंधे पे खड़ा हुआ अलीयुल वलीउल्लाह। अब अली समझ में आया। यही सबब है कि जब जरूरत लगी आ गई बात आ गई मसाइब तक। दो ही जुमले अर्ज करूंगा। जब जरूरत लगी तो अली ने अपने जख्मी सर को सहने मस्जिद में रखा, सर को सजदे में रखा और बाआवाज़ बुलंद कहने लगे, परवरदिगारा जब क़यामत का दिन हो और सुफूफे मलाइका मुकर्रबीन खींची हुई हो, अंबिया मौजूद हो, मुरसलीन मौजूद हो, फरिश्ते मौजूद हो, तो मालिक तू गवाही देना कि अली ने तेरी इबादत में कोताही नहीं की। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, तकरीर तमाम हुई। अली ने ये जुमला कहा और उसके बाद आवाज दी, फुल तो रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। और कहा बेटा हसन अब मुझे घर ले चलो। जब गलीम में ले जाए जा रहे थे, बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अब जाहिर है कि मसाइब को तवील नहीं होना, लेकिन जिस मरहले तक ले जाना चाह रहा हूं बहुत आहिस्ता आहिस्ता उस मरहले तक ले जाऊंगा। जख्मी सर को सजदे में रखा, कहा परवरदिगार तू गवाह रहना कि अली ने तेरी इबादत में कोताही नहीं की। फिर सर उठाया, सर उठाने के बाद सहने मस्जिद से मिट्टी उठाई, अपने जख्मी सर पर डाली, आयत पढ़ी, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमने इसी जमीन से पैदा किया है, इसी जमीन में पलटा देंगे, दोबारा इसी जमीन से उठाएंगे। ये आयत की तिलावत की और ये कह के हसन को आवाज दी कि बेटा हसन अब मेरे चलने का बंदोबस्त करो, अब मेरे चलने का बंदोबस्त करो। मैं देखो कहीं जा रहा हूं मैं, और पिछली शबों में बार बार मैंने मसाइब पढ़े, मैं आगे ले जाना चाह रहा हूं अपने सुनने वालों को। गलीम लाया गया, गलीम में अली सवार हुए, गलीम के मानी कंबल, उस कंबल को पीछे से दोस्तों ने उठाया, अगले दोनों सिरों को हसन हुसैन ने थामा, चले। जब गली में आए तो कहा हसन सुन रहे हो ना, हसन सुन रहे हो ना, तुम्हारी बहनों के रोने की आवाजें आ रही हैं, हसन सुन रहे हो? कहा कि हाँ मौला। कहा दोस्तों को इस मकाम से अलग कर दो कि कहीं ऐसा ना हो मोहम्मद की नवासियों की आवाज ना महरमों के कानों तक पहुंच जाए। बस ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। काफिला चला, जब दरवाजे पर पहुंचे तो कहा हसन मुझे गलीम से उतार दो। कहा बाबा आप बड़े कमजोर हैं। कहा बेटे जब मैं चला था तो पैरों पे गया था, अब अगर मैं चादर पे गया तो बच्चियां बर्दाश्त न कर सकेगी। अजरकुम अल्लाह। भाई जुमले सुनना। एक मरतबा अली चादर से उतरे, दाहिना हाथ हसन के कंधे पे रखा, बायां हाथ हुसैन के कंधे पे रखा, दरवाजे के करीब पहुंचे, दरवाजा खुला, सबसे पहले ज़ैनब की निगाह पड़ी, बेइख्तियार गिरिया किया, फरमाने लगे ज़ैनब अभी तो बाप का जख्मी सर देख रही है, कल जब भाई के कटे हुए सर को नो के नैदा पे बुलंद देखेगी। अजरकुम अल्लाह। ज़ैनब
अभी तो बाप के जख्मी सर को देख रही है, कल जब भाई के कटे हुए सर को लोगे नेजा पे देखेगी तो क्या आलम होगा। ये कह के फरमाया ज़ैनब सब्र करो, ज़ैनब सब्र करो, मैं अच्छा हूं। नबीज़ादियां इस तरीके से नहीं रोया करती। अंदर आए, सहने मस्जिद में फर्श बिछा दिया गया, दिन पे दिन गुजरते रहे, वक्त पे वक्त गुजरता रहा। 20वीं का पूरा दिन लोगों की मुलाकात में गुजरा। बस अजीजों, अब मैं आखिरी मरहले पे तुम्हें ले आया। 20वीं का पूरा दिन लोगों की मुलाकात में गुजरा। 21वीं की रात आई। रावी कहता है कि जब मैं 20वीं की शाम को अपने मौला की जियारत करने के लिए गया तो मेरे मौला के सर पर एक जर्द कपड़ा बंधा हुआ था और ये महसूस न होता था कि चेहरा ज्यादा दर्द है या कपड़ा ज्यादा दर्द है। बस आपने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। 21वीं की रात आई, शब कद्र थी। लोगों, बस ये जुमले सुन लो। तुमने गिरिया किया, लेकिन जहां तक मसाइब को ले जाऊंगा जरूरी है कि वहां तक पूरी तवज्जो से सुन लो। 21वीं की रात आई, शब कद्र थी। अव्वल शब में आमाल शब कद्र बजा लाए, सूरह यासीन की तिलावत की, सूरह रहमान की तिलावत की। जब आमाल से फारिग हो गए, कहा सारे बच्चों को जमा करो, सारे बच्चों को जमा करो। सारे बच्चे जमा हुए। भाई सुनना, सारे बच्चे जमा हुए, हो गए ना जमा, सब हैं, हुसैन नहीं है। एक मरतबा गौर से देखा, सब है, सारे बेटे सारी बेटियां बैठी हुई हैं, हुसैन नहीं है। कहा हसन हुसैन को तलाश करो। हसन गए, एक हुजरा देखा, दूसरा हुजरा देखा, तीसरा हुजरा देखा। एक हुजरे में हुसैन रोते हुए मिले और इतनी शिद्दत से रो रहे थे लेकिन जबान बाहर थी, तड़पते जाते थे और रोते जाते थे। बड़े भाई ने छोटे भाई का हाथ थामा, खेचते हुए अली के पास आए। हुसैन आए, अली के कदमों पे गिर गए। अब्दुल्ला सुनो अजीजों, हुसैन अली के बेटे हैं ना, अली के कदमों पे गिर के तड़पने लगे। एक मरतबा अली ने अपना कमजोर हाथ उठाया, हुसैन के सर पे रखा। कहा बेटे हुसैन, इतना न तड़पो। अब्दुल्ला सुनना, तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा खड़ी हैं, तुम्हारे नाना मोहम्मद मुस्तफा खड़े हैं, तुम्हारी नानी खदीजतुल कुबरा खड़ी हैं। भाई सुनना, इसलिए कुछ कहना चाह रहा हूं। हुसैन, तुम्हारी माँ फातिमा खड़ी है, तुम्हारे नाना मोहम्मद खड़े हैं, तुम्हारी नानी खदीजतुल कुबरा खड़ी है। हुसैन गिरिया न करो, वरना ये क्या सोचेंगे कि अली का बेटा सब्र न कर सका। बस ये जुमला या अली ने कहा या हुसैन ने कहा। करबला के मैदान में जब या अली कह के अकबर के सीने से बर्छी निकाली तो अकबर तड़प गए। हुसैन ने कहा अकबर, ये इब्राहिम खड़े, ये इस्माइल खड़े, ये मूसा खड़े, ये नूह खड़े, अकबर सब्र करो वरना ये अंबिया कहेंगे कि हुसैन का बेटा सब्र न कर।